Okay, all right. So, good evening, friends. Welcome you all to CSC Edge and PSIR Edge channel on Telegram. So, this is the third lecture of topic 6. We are doing political science optional, paper 2, section 1. And this is topic about key concepts of IR, which has syllabus topics like national interest, security, power, balance of power, deterrence, transnational actors, collective security. So in the first two lectures, we had finished some topics about security, power, and balance of power. So in this third lecture, we shall be focusing on national interest, some topics about transnational security, etc. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. एंड लाइक फॉर्मेट सभी को पता है. वी विल गो थ्रू द टॉपर्स नोट्स जो हम पढ़ रहे हैं. आफ्टर रीडिंग थ्रू द कीवर्ड्स, एवरीबडी शुड ट्राई टू इलेबोरेट ऑन इट एंड ट्राई टू शेयर देयर नॉलेज. जो भी आप लोग को याद आ रहा है ना आपके नोट्स में से. एंड वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज ओपन योर बुक्स एंड नोटबुक्स एंड डू कॉन्ट्रीब्यूट योर पॉइंट्स. ठीक है, इसमें कुछ कम है या जो भी है ना, आप लोग बता दीजिएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. Yes, we shall start with this. Firstly, we'll discuss with the premises of what is national interest. What constitutes national interest? So, firstly, we have one quote by Morgan Thua. There is one guiding start, one standard for thought, one rule for action, and that is national interest. मतलब ये national interest की supremacy को predict मतलब वो portray करने वाली बात है. उसके बाद फिर नेशनल इंटरेस्ट काफी सारे स्कॉलर्स ने दिया है. मॉर्गन थुआ हो गया, स्कॉलर्स लाइक रॉबिन्सन ने दिए रखी है. इंडियन वर्जन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट भी देख सकते हो आप. उसके बाद फिर नेशनल इंटरेस्ट के जो आगे हम पढ़ेंगे, रेमंड एरन ने सूडो थ्योरी बोला है, फिर जोसेफ फ्रैंकलिन, ये सारे सीक्वेंस में पढ़ते हैं. सबसे पहले मॉर्गन थुआ से ही स्टार्ट करते हैं. द मेन मोटिवेशन फॉर फॉरेन नेशनल इंटरेस्ट इज द मेन मोटिवेशन फॉर फॉरेन पॉलिसीज. मतलब फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? नेशनल इंटरेस्ट का अचीव करना. Morgan Thua, who was a realist, placed the national interest over ideology and ethics like Machiavelli. Like Machiavelli was used to say na कि national interest should be the prime concern for prince. So it was like Morgan Thua was also influenced by Machiavelli in his realist discourse, and he also propagated the same fact. So national interest in terms of power, power is an objective reality. Fundamental interest is equal to national interest. Lord Palmerston, नो परमानेंट एलाइज और एनिमीज, ओनली परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट. सो मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा वो ये प्रीमसाइज से बताता है कि नेशनल इंटरेस्ट शुड बी द सुप्रीम वैल्यू फॉर एनी नेशन. द फॉरेन पॉलिसी शुड बी मेड इन सच अ सेंस दैट इट मनूवर्स द आउटकम्स टूवर्ड्स इट्स नेशनल इंटरेस्ट. Okay, so this was with Machiavelli, what Machiavelli thought of national interest. Again, we have Charles Baird. He said that dynamic basis on justification action those powers like Hitler and Stalin. मतलब ये बताते थे कि national interest is not a static concept कि ये है national interest. It keeps on changing with time. So Charles Baird का जो वो था core idea, it was like it should be dynamic. National interest should be dynamic. Then we have Morgan Thua. Morgan Thua has divided national interest into two types: core national interest and variable national interest. Core national interests are fundamental and they do not change. Hence, they show continuity in foreign policy. इसका कोई एग्जाम्पल बता दो इंडिया के रेस्पेक्ट में या यूएस के रेस्पेक्ट में. आई थिंक सॉरेंटी वाला या फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी तो कोर हो जाएगा ना. सिक्योरिटी विल बी द कोर कंसर्न. उसके बाद फिर वेरिएबल इंटरेस्ट जो सोवेरेनिटी जो मतलब ये भी कोर इंटरेस्ट ही है. फिर वेरिएबल इंटरेस्ट जो है वो आगे आगे चेंज होता रहेगा. वेरिएबल इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं अब. किसी को और कुछ ऐड करना है कोर इंटरेस्ट पे? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बता दो कोर इंटरेस्ट क्या होगा. टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी कोर इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडिया के भी फॉरेन पॉलिसी में. Variable national interest. Variable interest are the reasons to see continuity with change in foreign policies. So variable national interest का example इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत ब्यूटीफुली रिड्यूस किया जा सकता है एंड ऑफ कोल्ड वॉर से लेकर. हमारी नेशनल इंटरेस्ट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पर थी. एज सुन एज द कोल्ड वॉर एंडेड विद द न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर, उसके बाद फिर इंडिया ऑल्सो हैड टू अलाइन इटसेल्फ टू द वेस्ट. तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी एंगेजमेंट बढ़ गई थी 1990s के बाद. उसके पहले वी वेर वेरी रिजिड इन द फॉर्मेट की नहीं नहीं ये कोर इंटरेस्ट है, नॉन अलाइनमेंट वाज कोर इंटरेस्ट. सो नेशनल इंटरेस्ट चेंज्ड बिट.
because of the uncertainties or because of the टाइम, मतलब बिकॉज ऑफ द नीड्स भी बोल सकते हो एक तरीके से। तो नेशनल इंटरेस्ट कोर भी रहता है, वेरिएबल भी रहता है, चेंज भी होता है। हमने चेंज किया नेशनल इंटरेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी, पहले एफडीआई नहीं लाने देते थे, बस फिर नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमने चेंज किया, इट चेंजेस ऑल्सो। So on that note, scholars like Robinson have given classification for national interest. One is primary, secondary, permanent, variable, general, and specific. He has also given the ways in which the countries protect their national interest: balance of power, deterrence, diplomacy, international law, organizations, propaganda, intelligence, ideology, and incentives. Okay. Does anyone else wants to add on this, Morgan, to us? इंडिया के कंटेक्स्ट में हम न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी मेंशन कर सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट में, कैसे कैसे चेंज हुआ मतलब। वेरी वेल सर, वेरी वेल। हालांकि उसमें उतना ज़्यादा चेंज हमने मतलब दिखाया नहीं, हम पहले से ही बोल रहे थे वी विल नॉट साइन एनपीटी, एंड वी आर वेरी रिजिड विद दैट एटीट्यूड कि नहीं भाई हम तो एनपीटी साइन नहीं करेंगे। एक मतलब कंटिन्यूटी दिखाते हैं। डेवलपमेंट, मतलब पहले मना कर रहे थे, फिर बाद में सिर्फ पीसफुल टेस्ट किया, फिर बाद में फुल फ्लेजेड टेस्ट किया, ऐसे मतलब यस सर, डेवलपमेंट धीरे धीरे। यस सर, आई गेट इट। पहले जैसे इंडिया वाज अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, हाँ। सॉरी इंडिया वाज अगेंस्ट न्यूक्लियर पावर, बट व्हेन इट बिकेम न्यूक्लियर पावर देन इट वाज लाइक कि नहीं यार हम तो एनपीटी साइन नहीं करेंगे, बिकॉज मतलब वो चेंज दिखा रहा था, कोर भी था बट चेंज भी था। हम्म। We shall land on to, if someone else wants to add on this. Okay, we shall land on to the Indian version of national interest, the सर six-fold सर policy इस or the four. सर इसमें Please carry नेशनल on. Some एगोइज्म भी था शायद, नेशनल एगोइज्म का कंसेप्ट भी है इसमें शायद। what? सर नेशनल नेशनल इंटरेस्ट इज लाइक नेशनल एगोइज्म, मैंने Okay, पढ़ा था ये। okay. सर Actually, I'm not स्पेलिंग बोल aware of. सकते हो? सर लिख देता हूँ इगोइज्म मैं क्या? मैं ईगो? लिख देता हूँ सर मैं। इगोइज्म बता रहे आप क्या आप कैरी सर? ऑन करें सर। Yeah, I think Creature sir is typing. He'll type it, whatever he was saying. We shall move on to the next topic. So the next topic we have here is Indian version of national interest. It's written here that it's a six-fold policy and four-fold policy. So though national interest is a core concept, yet it is called a pseudo theory. The prime reason that it is highly subjective concept. National interest is a concept. Okay, so in this notes, it has not been explicitly mentioned about six-fold policy or four-fold policy. Can anyone explain this in detail? Indian version of national interest? 2 अर्थशास्त्रा वाली है, 6 फोल्ड और 4 फोल्ड। The ideas of Kautilya. Can you please explain it in a brief? चलेगा थोड़ा सा शॉर्ट में। बस दो मतलब कर लो, तो मैं खाना खा रहा हूँ। Fourfold policy, I guess, is साम दाम दंड भेद. Okay, and the sixfold policy, Kautilya को पढ़े काफी टाइम हो गया, so I am not able to recall it right now. If anyone else can recall it, please enumerate it. इट कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। तो सिक्स फोल्ड पॉलिसी अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र उन्होंने बोला है कि स्टेट शुड फॉलो सिक्स फोल्ड पॉलिसी विद अदर स्टेट्स। तो क्या होता है वो? पहला है संधि, मतलब ट्रीटी ऑफ पीस बनाओ, विग्रह करो, जहां पे रिक्वायर्ड है संधि बनाओ पहले, अगर रिक्वायर्ड है तो विग्रह करो मतलब वॉर करो। तीसरा है आसन, मीन्स न्यूट्रलिटी, बी न्यूट्रल, जैसे अभी ये रशिया और यूएस या फिर यूक्रेन का देख लो, अभी वी आर बीइंग न्यूट्रल। तो यान मीन्स मार्चिंग, प्रिजमेबली अ थ्रेट। क्या मतलब हो गया इसका? याना मीन्स मार्चिंग, थ्रेट। तो यामा है मतलब एक्सरसाइज नियर बॉर्डर, मतलब कि प्रेशर क्रिएट करने की टेक्निक है।
करेक्ट करेक्ट। ओके, सो उसके बाद है 5 नंबर पे समश्रय अलायंस एंड द्विधि भाव, मेकिंग पीस विथ वन एंड वॉर विथ अनदर। एक साइड पे पीस करो एंड वॉर अलग से दूसरी साइड पे करो। ठीक है। सर डबल पॉइंट मत खोलो, दो एनिमी है तो एक के साथ दोस्ती कर लो थोड़ी देर। सॉरी, शुड और आई रिपीट? सर यू वर सेइंग समथिंग, कैन यू प्लीज रिपीट इट? मतलब वो इसका जो एंड वाला है सिक्स वाला, उसका मतलब ये है कि अगर मतलब दो एनिमी है तो एक दोनों के साथ टू फ्रंट वॉर मत खोल दो, एक के साथ कुछ देर के लिए दोस्ती कर लो और मीनवाइल सामने वाले पे अटैक करो। ये Okay, sir. Thank you for that. On that note, we shall move on this topic. So now we arrive at what was the concept for Marxist scholar. Though the national interest is a core concept, yet it is called a pseudo theory. The prime reason is that it is a highly subjective concept. National interest is a concept which has been criticized by Marxist scholar. The first theoretical analysis of national interest from Marxist perspective is done by Charles Beard. In the words of Charles Beard, if the citizens have to support the government which persecutes them, the soldiers are to die for it, foreign policy has to confirm it, what better term can it be other than national interest? मतलब it was highly critical of national interest to be stated like this कि on forefront of national interest we tell the soldiers to die. We force the soldiers to give their life. On forefront of national interest we persecute, matlab, just like this, you can say, when Nazi was on the rise, it has not been culminated into the war. It was said that national interest should be supreme, national interest should be supreme. So government actually was taking away the civil and political rights. It was actually persecuting the other person on the name of national interest कि ये तो देश विरोधी है, इसे तो हम मारेंगे. तो परसिक्यूशन हो रहा है, तो इनका व्यू काफी क्रिटिकल है नेशनल इंटरेस्ट के लिए. I think there's some issue with the screen, sir. It goes on and off. No worries, I have my own screen as well. I'll just read out from here. So कंटिन्यू it's कंटिन्यू। yes, sir. It was from Marxist perspective that national interest is a pseudo theory. It was first declared by Raymond Aron. He called national interest as pseudo because it was vague, subjective. Its meaning changes according to the context. Ambiguity in the concept hinders the formulation of an acceptable theory of national interest. So here, Raymond Aron is highly critical of national interest in the terms that it is vague. मतलब कभी कभी नेशनल इंटरेस्ट हो जाता है सोवरेनिटी, कभी कभी नेशनल इंटरेस्ट हो जाता है ट्रेड, कभी कभी नेशनल इंटरेस्ट हो जाता है सामने वाले का लैंड कब जाना. तो ये बहुत वेग है. इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम. हमने कहा था ना, चेंज होता रहता है, कोर होता है, वेरिएबल होता है. तो इसी को लेकर रेमंड एरन इसको क्रिटिसाइज करते हैं. ही सेज इट्स सब्जेक्टिव आल्सो, मीनिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. ओके, ऑन दैट नोट वी शुड मूव. किसी को कुछ ऐड करना है इसमें ऑन द स्यूडो थ्योरी, नेशनल इंटरेस्ट एज अ स्यूडो थ्योरी? आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। Okay, yes, sir, we shall move. So, Joseph Frankel was one of the scholars. Any search of the theory for national interest is useless. It is used in variety of ways for variety of purposes. There is no single meaning and content. So, it's also a critical view of national interest. Burchell Scott was of the opinion that despite wide use of the concept, theory lacks any substance. Okay. According to Muhammad Yunus, national interest is a means to promote interest of the elites. In his book published in the Theory of National Interest, he has shown how the army in Pakistan describes national interest as its interest as national interest. Muhammad Yunus. So these were the critical views of national interest. Firstly, we saw how Morgenthau described national interest, and then Robinson's classification of national interest in 6 parameters like primary, secondary, permanent, variable, general, and specific. And then we moved on to Indian version of national interest like six-fold policy and four-fold policy. And then it was Marxist time.
The Marxists were highly critical of the concept of national interest. They called it as a pseudo theory. We had scholars like Raymond Aron, Joseph Frankel, Burchell Scott, and Muhammad Yunus. Muhammad Yunus was the first scholar who has given the context in the third world perspective. In Pakistan's concept, like the national interest is the interest of the army. This was the topic for national interest. Does anyone else wants to add anything on this national interest topic? रॉबिन सर के टाइप्स देख लिए ना? और डिड वी लुक एट दिस रॉबिन्सन टाइप्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट? नहीं, ये पार्ट शायद मिस हो गया। हाँ, तो एक बार देख लेते हैं। रॉबिन्सन ने टाइप्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट दिया है। जैसे उन्होंने क्लासिफाई करा है, जैसे प्राइमरी इंटरेस्ट होता है, सेकेंडरी हो सकता है। तो मिलिट्री वाला प्राइमरी होगा, मतलब सिक्योरिटी वाला, एंड इकोनॉमिक वाला सेकेंडरी होगा। सम नेशनल इंटरेस्ट इज परमानेंट, while some are temporary, while some are general, some are very specific. किसी को इलेबोरेट करना है इस पे, जनरल वर्सेस स्पेसिफिक का? तो मतलब ये कहते हैं कि टोटल क्या कहते, जो नेशनल इंटरेस्ट है वो प्राइमरी है, जो प्राइमरी होता है वो परमानेंट होता है और जनरल सेंस में होता है, और जो सेकेंडरी होता है वो वेरिएबल और स्पेसिफिक रहता है हमेशा, ऐसा। और जनरल और स्पेसिफिक में बोलना चाहे तो जनरल हो गया इंडिया का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, स्पेसिफिक हो गया कि लद्दाख पूरा हमारे ही कंट्रोल में होना चाहिए, या जम्मू कश्मीर शायद। करेक्ट, इट मेक्स सेंस। क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। नेशनल सर इंटरेस्ट एंड ग्लोबल इंटरेस्ट हैव बिकम इंटरट्विन्ड। सर ये मेरे पास लिखा है कि इन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को 6 टाइप्स में क्लासिफाई किया है, तो मतलब और कौन से बाकी टाइप्स है? यही तो है ना, 6 टाइप्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, परमानेंट, टेम्पररी, जनरल, स्पेसिफिक। ये 6 ही हो गए ना। ओके ओके, ठीक है। उसको बस याद करने के लिए इजी हो जाएगा, इसलिए दो दो को पार्ट्स में डिवाइड करा है वैसे। ठीक है, क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट एंड ग्लोबल इंटरेस्ट हैव बिकम इंटरट्विन्ड। लो पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड सोशल वेलफेयर हैज गेन्ड मोर प्रायोरिटी देन हाई पॉलिटिक्स ऑफ सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल, ऐसा जोसेफ नाई एंड केहोनी का कहना है। ठीक है, तो ये दो क्रिटिसिज्म बोल सकते हैं इसके लिए। फिर कंक्लूडरी रिमार्क थोड़ा सा लिखा है इस पे। Foreign policy of major countries show that the importance of concept is not going to diminish. Recently, US said that it will follow WTO when it suits their national interest. And अभी जैसे इंडिया का स्टैंड जो यूक्रेन क्राइसिस में है ना, टू एब्सटेन फ्रॉम दैट वोट एंड नॉट टू डायरेक्टली अपोज रशिया, ये भी बहुत सारे स्कॉलर्स ने नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे जस्टिफाई करा है, विच इंक्लूड्स कन्वल सिबल ने कहा है, एम्बेसडर पार्थसारथी ने कहा है, इवन मीर शैमर भी यही बोलते हैं, मतलब कि न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब वी कैन यूज एनी स्कॉलर बेसिकली। एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि हाउ टू सर्व नेशनल इंटरेस्ट में 2-3 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो रियली स्कॉलर है मीर शैमर, ही सेज प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट बाय द यूज ऑफ हार्ड पावर एंड टेकिंग एन ऑफेंसिव स्टैंस। तो वही मतलब ऑफेंसिव रियलिज्म की बात है। तो वन शुड क्रिएट प्रीपॉन्डरेंस ऑफ पावर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इसका एग्जांपल देना है तो फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया पकड़ लो। ये क्या हो गया, एग्जांपल कैसे फिट हो रहा है? हाँ सही है भाई। कैसे सही है?
मतलब फॉरेन पॉलिसी हमारा रशिया के साथ ना, वही नेशनल इंटरेस्ट का ही अकॉर्डिंग है, हमारे मिलिट्री पर डिपेंडेंसी यहाँ रशिया। पे जो रशिया है वो यूएस के पर्सपेक्टिव में है, जो मियर शाइमर दे रहे हैं वो हमारे पर्सपेक्टिव से नहीं है। हाँ मुझे भी वही लग रहा है, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब किसी को कुछ एलेबरेट करना है उस पे। सर मतलब ये कह रहे हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ पावर यूएस यूज करता है रशिया के अगेंस्ट, वो क्या कहते हैं ऑफेंसिव स्टांस लेता है, तो वो उनके लिए जरूरी है, प्रीपोंडेंस ऑफ पावर ना, ये ऐसा बोलना चाह रहे ठीक है ठीक है ठीक है। फिर या न्यू। हम यूरोप कह सकते हैं कि यूरोप तभी अपोज कर रहा है रशिया को जब उनके उन पे अब जान पे आ गई है, और पहले तो उन्हीं से ऑयल गैस सब खरीदता रहता था और उन्हीं पे डिपेंडेंट था, हैं। अभी तब भी कुछ ले ज्यादा ही नहीं। रहे हैं सर। हाँ अभी भी ले ही रहा अभी है। भी खरीद रहे हैं। हाँ हाँ, वो मतलब कि नॉर्थ थोड़ा स्ट्रीम चल ही रहा है ना। जान पे आ गई बस तभी दो अभी। वाला बंद कर दो। पॉइंट टेकन सत्यम सर, पॉइंट टेकन। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। न्यू लिबरल्स एडवाइस टू परस्यू national interest by the use of soft power. Joseph Nye has given the idea of smart power, which should be the combination of both hard power and soft power. तो मतलब नेशनल इंटरेस्ट को कैसे अचीव करना है उसके बारे में तीन अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट है ये। कुछ और ऐड करना है किसी को नेशनल इंटरेस्ट के बारे में? Sir, I think smart power is like sharp power, or is it same? आई थिंक द डिफरेंट, बट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन नाउ। कैन somebody elaborate? Okay, smart power was given by Nye after he gave soft power, तो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का कॉम्बिनेशन बनाया स्मार्ट पावर। और जो दूसरा किसी ने कहा शार्प पावर ना, जैसे फास्ट पावर था वो रॉबर्ट चिपमैन का था, शार्प पावर जो है वो प्रोपेगेंडा के लिए यूज होता है अथॉरिटेरियन रिजीम्स में। तो ये शार्प पावर अलग है, जैसे चाइना यूज करता है ना ग्लोबल टाइम्स, तो वो हो गया शार्प पावर, जिसको वो हाँ सर। नैरेटिव के लिए यूज करते हैं, प्रोपेगेंडा मेकिंग के लिए। सर बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो मतलब अथॉरिटेरियन कंट्री है वो अपने यहाँ का क्लोजनेस, और डेमोक्रेटिक कंट्री जो बाहर की है उसकी ओपननेस का फायदा उठाती है बेसिकली, ताकि अपने यहाँ का प्रोपेगेंडा उनके यहाँ फैला दे और उनके यहाँ का चीजें हमारे यहाँ ना पहुंचने दें। जैसे सेम एग्जांपल जो अभी पुतिन सर ने दिया है चाइना का। Thank you, sir. Thank you, sir. ठीक है, आगे चले फिर, या फिर कुछ ऐड करना है किसी को? So we shall move ahead. ओके चलो, लेट्स मूव देन। तो आगे पाल्मर मेरे एंड पास पार्किंस का मेथड देख लिए क्या हम लोग? बताइए ना क्या देखना है उसमें। मतलब कुछ तो था मैं यार। एक्चुअली पूरा था नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मतलब हो गया क्या वो? क्या है उसमें, मतलब कौन सी कंसेप्ट आप बोल रहे हो? कल देखा था अपन ने शायद। नहीं नहीं, वो अभी क्विज देते हैं ना, वो नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए 6 पॉइंट्स देते हैं वो प्रॉपर। डिप्लोमेसी, अलायंस, प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इकोनॉमिक मेथड और इंपीरियलिज्म। 6 पॉइंट्स देते हैं। आप बोल दीजिए सर, आप एक बार देख के या फिर ग्रुप में डाल दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, अभी पढ़ना है आपको? बता दो एक बार चाहिए तो। अच्छा तो जैसे ये रिकॉर्डिंग में पाल्मर आ एंड जाएगा। पार्किंस थे, वो सर बोलते हैं कि सर मतलब वो टोटल 6 पॉइंट्स देते हैं नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। तो उसमें बताते हैं कि डिप्लोमेसी, क्या कहते हैं, डिप्लोमेसी यूज कर सकते हैं ताकि डिफरेंट नेशनल इंटरेस्ट को रिकनसाइल करके इस तरीके से बढ़ा जाए ताकि दोनों का फायदा हो। फिर अलायंसेस बना सकते हैं। फिर वो कहते हैं प्रोपेगेंडा का यूज कर सकते हैं कि उसको फैला सकते हैं। फिर उसमें लैसवेल करके एक है, वो प्रोपेगेंडा को बताते हैं कि मैनिपुलेशन ऑफ सिंबल्स, कि जो भी चीज़ें उसको अलग अलग तरीके से दिखाना। फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर देते हैं। और उसके सर इकोनॉमिक मेथड और सर इंपेरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म, ये सब टोटल 6 मेथड्स देते हैं नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए।
ऑल राइट सर, थैंक यू। तो आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक करना है अपने को ट्रांसनेशनल एक्टर्स का। तो इसमें बेसिकली ऐसा है ना कि ठीक है, ये डायरेक्टली स्पेसिफिकली मेंशन करा हुआ है टॉपिक इसमें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंटरनेशनल पॉलिसी पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशंस अमॉन्ग द एक्टर्स एट ग्लोबल स्टेज। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्टर्स: स्टेट एक्टर्स, इंटरनेशनल एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, तो इसमें अलग अलग व्यू पॉइंट्स है। रियलिस्ट का अलग है, लिबरल्स का अलग है, मार्क्सिस्ट का अलग है। मार्क्सिस्ट एक्चुअली जो ट्रांसनेशनल एक्टर्स है ना, वो 17th सेंचुरी एक्सपांशन ऑफ इंपीरियलिज्म हुआ था, ग्लोबलाइजेशन में पढ़े थे ना कि फॉर मार्क्सिस्ट ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड ड्यूरिंग दैट यूरोपियन एक्सपांशनिज्म, जब इंपीरियलिज्म बढ़ रहा था, मर्केंटिलिज्म वगैरह उसी से स्टार्ट होता है। अच्छा, फिर ट्रांसनेशनल एक्टर्स जो रोल है वो इंक्रीज हुआ है करंट टाइम्स में। लाइक 3D चेस बोर्ड मॉडल दिया था, ग्लोबलाइजेशन हो गया, आईसीटी रिवॉल्यूशन आया है, ह्यूमन राइट्स कॉन्शियसनेस आया है, कनेक्टिविटी बढ़ा है, टेलीकम्युनिकेशन बढ़ा है अभी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं अपन टाइप्स ऑफ एक्टर। देखा अपन स्टेट, इंटरनेशनल, ट्रांसनेशनल एक्टर्स। ट्रांसनेशनल में एनजीओ आते हैं, एमएनसी आते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसनेशनल आ रहे हैं। अच्छा, ट्रांसनेशनल एक्टर्स आर नॉन स्टेट एक्टर्स हैविंग ऑपरेशंस बियॉन्ड द बॉर्डर्स। डू ट्रांसनेशनल एक्टर्स हैव रोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट। मैटर ऑफ डिबेट क्यों है? क्योंकि रियलिज्म वगैरह सबके अलग अलग थॉट्स है। तो रियलिज्म टेक्स स्टेट सेंट्रिक व्यू पॉइंट। फॉर देम इवन द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर प्रॉक्सीज। ठीक है, तो जो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं ना कंट्रीज, वही है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एट द एंड प्रॉक्सी है, ऐसा बोला जाता है रियलिस्ट के द्वारा। लिबरल्स, मार्क्सिस्ट एंड फेमिनिस्ट डू रिकॉग्नाइज द रोल, बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लिबरल्स सी द पॉजिटिव रोल इन ब्रिंगिंग डेवलपमेंट, एमएनसीज की बात कर रहे होंगे शायद, बट मार्क्सिस्ट लुक एट एमएनसीज एट द एक्सप्लॉइटर्स। Feminists also consider MNCs as the exploiters. Why there is a role of non-state actors? Because growth of society-centric world होगा वो, तो society-centric world हो रहा है एंड ग्रोथ ऑफ इंटरडिपेंडेंस हो रहा है। सप्लाई चेन्स का देख सकते हैं ना अपन, सप्लाई चेन इनिशिएटिव आया था SCRI। तो विच मॉडल्स रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स? कॉबेब मॉडल है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस मॉडल है, 3D चेस बोर्ड मॉडल है। किसने किसने दिया ये तीनों भी मॉडल? कैन समबडी नेम? थ्री चेस तो शायद नाई का था ना। आई थिंक जोसेफ नाइक सर जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है ना। सर कॉबवेब जो है ना वो जॉन बर्टन का है, और अर्नोल्ड वॉल्फर का बिलियर्ड बॉल मॉडल है। करेक्ट सर, करेक्ट। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में दो स्कॉलर्स है, याद आ रहे किसी को? हाँ वो सर रॉबर्ट क्यूहन और केहोन जोसेफ एंड नाई नाई है ना। क्या? हाँ क्यूहन एंड नाई। ठीक है। एंड 3D चेस बोर्ड कोई कंफर्म कर दो ना, कौन सा है स्कॉलर? जोसेफ नाई है सर सर। जोसेफ ना, हाँ जोसेफ जोसेफ नाई ना है। ओके सर, थैंक यू। तो एनालिसिस ऑफ रोल ऑफ एमएनसी देखते हैं अभी। Realists do not recognize their role. Liberals appreciate their role but consider it as relatively recent phenomenon. ठीक है, तो रियलिस्ट उनको लेते ही नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं करते। Marxists criticize realist approach. When realists do not recognize MNCs as the actors, they are actually diverting our attention from the activities of MNCs. Similarly, liberals promote the false consciousness. MNCs have resulted into the continuation of drain of wealth and development of underdevelopment. MNCs did not adopt sustainable development approach. Sometimes MNCs carry forward the interest of their states, and sometimes states carry forward interest of their MNCs. मतलब दिस कैन बी सीन फ्रॉम जो इकोनॉमिक फंडिंग होता है ना, तो MNCs जो बड़े बड़े हैं, दे हैव ह्यूज बिलियन डॉलर उनके साथ में होते हैं। जैसे शायद अगर एप्पल के रेवेन्यू को आप कंपेयर करेंगे, बहुत सारे कंट्री से भी ज्यादा उनका रेवेन्यू है। तो दे हैव ह्यूज इन्फ्लुएंस ओवर पॉलिटिक्स।
ठीक है, MNCs have contributed towards the failure of democracies by sabotage. They have toppled the democratically elected governments in Latin America, Middle East, and installed puppet regimes. Now, even developing countries like India and China have their own MNCs, which may not follow sustainable path in Africa and Latin American countries, resulting into huge resentments. MNCs are extremely powerful force. The budget of some of the MNCs is bigger than the GDP of many smaller countries. Marxists trace the role of MNCs since the 17th century. East India Company can be seen as an example which established its own empire. कुछ ऐड करना है किसी को MNCs के बारे में? सर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर जैसे मतलब NSA का नाम अजीत डोवाल है शायद, उन्होंने भी तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बोला था ना कि फोर्थ जनरेशन ऑफ वॉरफेयर, थर्ड जनरेशन ऑफ वॉरफेयर हो रही है। ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट में उनका भी कुछ स्टेटमेंट था। एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ प्रिसाइसली। उन्होंने एक्चुअली सिविल सोसाइटी को बोला था कि सेट कि सिविल सोसाइटी इज एक्टिंग एज द थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन ऑफ वॉरफेयर। मतलब बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे ना कि सिविल सोसाइटी को मिसयूज करा जा रहा है दूसरे कंट्रीज ने टू इंटरफेयर इनटू द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ अ कंट्री। सर आई गेट आई वाज टेकिंग इट रॉन्ग वे। नहीं ठीक है, लिख सकते हैं अपने यार, इतना कुछ नहीं, लिबरल ही है। अच्छा, एक और कीवर्ड याद रखो, MNCs कैन बी सीन एज एन वैनगार्ड्स ऑफ लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर एज वेल। मतलब मार्क्सिस्ट तो ब्लेम करेंगे ऐसा। फिर रॉबर्ट कॉक्स का स्टेटमेंट शायद, MNCs हैज लेड टू इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट इटसेल्फ। और इसमें शायद एक और वो कोट नहीं है मार्क्स वाला कि बुर्जुआज नेसल एवरीवेयर एंड सेटल एवरीवेयर इन सर्च ऑफ प्रॉफिट्स। याद आ रहा है किसी को? हाँ सर, यही है जो आपने बोला। हाँ, ये भी मतलब लिख सकते हैं ना इसी MNCs वाले कॉन्टेक्स्ट में। एंड आई थिंक एक और कोट है, आई एम नॉट श्योर द स्कॉलर, बट USA का क्रिटिक है वो, एंड ही सेज कि मतलब स्टेट्स आर रेडी टू गो फॉर वॉर्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बुर्जुआज क्लास। आई थिंक USA के बारे में है ये। सर एक बार वो रॉबर्ट कॉक्स वाला स्टेटमेंट बोले। हेलो, क्या कह रहे हो सर? सर वो रॉबर्ट कॉक्स वाला स्टेटमेंट एक बार बोलना प्लीज। वो लिखा है ना सर स्क्रीन पे, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट। मतलब वही स्टेट जो है वो अपने एक्सपेंड कर रहा है पावर्स को विद द यूज ऑफ MNCs। जैसे चाइना का हुआ भी पकड़ लो, वो सब जगह पे अपना कब्जा बना रहा है, चाइना इज कंट्रोलिंग इट, रेगुलेटिंग इट। सेम थिंग कैन बी सेड फॉर USA एज वेल। एंड इन दिस कंटेक्स्ट आई थिंक कोई एक स्कॉलर है जिसके अगेंस्ट बोलता है वो, ही हैड सेड कि US स्टेट जो है कैपिटलिस्टिक स्टेट है, एंड दे आर रेडी टू गो फॉर वॉर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बोर्जुआज इंटरेस्ट ऑफ USA। सर इसी में नोआम चोस्की US को फर्स्ट टेररिस्ट स्टेट भी बुलाती हैं ट्रांसनेशनल एक्टर और ये अदर ग्रुप्स के रिगार्डिंग। करेक्ट सर, वही है, नॉम चॉम्स्की है। और इसमें आई थिंक एक और थियरी आती है ना। सॉरी सर, इनकी किताब भी है, प्रॉफिट ओवर पीपल, नॉम चॉम्स्की। करेक्ट करेक्ट, प्रॉफिट्स ओवर पीपल, वही है जो जो मैंने बोला या फिर अभी बेंथम सर ने बोला ना, सेम पॉइंट है वो। हाँ, वहीं से आइडियाज आ रहे हैं। करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट। इसमें एक और थियरी मुझे याद आ रही है यार, वो जो नहीं है कोई तो इलाइटिव थियरीज ऑफ स्टेट ऐसा कुछ है, वो कौन स्कॉलर उसमें याद आ रहे हैं? उसमें वो कहते हैं ना कि इलाइट्स आर कंट्रोलिंग। तो एक तो रॉबर्ट माइकल है उसमें, ओलिगार्की इज द आयरन लॉ। और याद आ रहा है किसी को और कुछ है उसमें इलाइटिस वाले में?
इलाइटिस्ट का एक थ्योरी सीबी मैकफियरसन ने भी दिया है, बट शायद वो डेमोक्रेसी का था। वो मैकफर्सन ने वो क्लासिफाई किया है ना डेमोक्रेसी को उसमें। ठीक है, ठीक है। और एक अच्छा, तो आगे देखते हैं शुमपीटर अपन। करके भी है रियलिस्ट का सर देखा इसमें, अपन ने। इलिट में शायद हाँ, बताओ। शुमपीटर करके भी एक है। उनका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट तो मुझे नहीं याद है अभी। हाँ, वो शोम्टर ढाल एक्सिस बोलते हैं ना कुछ तो। हाँ हाँ हाँ, शुमपीटर, डाहल एक्सिस, रॉबर्ट ढाल, आई थिंक वो नॉट, वाला है, क्या हाँ प्लूरलिस्ट है। हाँ प्लूरलिस्ट है। और ये एंड मतलब कहते हैं शोम्पर कि इलाइटिस्ट है। हाँ, मैकफर्सन कहते हैं कि वो एलिटिस्ट और प्लूरलिस्ट में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, सब घुमा फिरा के एक ही बात करते हैं। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। रियलिस्ट देखा अपन ने, एजेंट ऑफ स्टेट मानते हैं। लिबरल्स एडवोकेट करते हैं, में से सपोर्ट करते हैं उनको। मार्क्सिस्ट का देखा अपन ने कि वर्ल्ड कैपिटलिज्म का थियरी है ना। फिर मार्क्स के खुद के व्यूज है। फेमिनिस्ट देखा अपन ने, एक्सप्लॉयटेशन होता ही है एमएनसीज का। इसमें हम एक और व्यू पॉइंट डाल सकते हैं, शायद वंदना शिवा बोलती है कि एमएनसीज हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग द एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट इक्वली। मतलब होता क्या है ना कि डेवलप्ड कंट्रीज के जो एमएनसीज होते हैं, दे गो इनटू द ऑफशोर, लाइक डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज। वहां पे नॉर्म्स वगैरह फॉलो नहीं करते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं वहां से। तो होता क्या है, इन द एंड द ब्रंट ऑफ जो है ना एनवायरमेंटल क्राइसिस, वो फेस करना पड़ता है डेवलपिंग वर्ल्ड को। तो ये भी डाल सकते हैं हम इसमें। क्रिटिकल थियरिस्ट है, बोलते हैं कंज्यूमर कल्चर हो रहा है। कोई स्कॉलर याद आ रहा है इसमें किसी को कंज्यूमरिज्म के बारे में? आई थिंक हर्बर्ट मार्क्यूसी है ना, वन डायमेंशनल मैन में बोलता है वो कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, ऐसा कुछ। नहीं याद आ रहा है किसी को? सर एक बार बता दीजिए, हर्बर्ट मार्क्यूसी वाला। मेरे को बस इतना ही याद आ रहा है, हर्बर्ट मार्क्यूसी है, उनका एक बुक है वन हाँ, वन डायमेंशनल मैन डायमेंशनल है। मैन। And वो यही कहता है कि जो मैन है ना, वो उसकी रीजनिंग एबिलिटी खो चुकी है। वो सिंगल डायमेंशनल हो रहा है, पैसा 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 के पीछे भाग रहा है। कंज्यूमरिज्म कल्चर बढ़ रहा है, ऐसा कुछ है वो। ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मतलब कुछ गलत बोला फिर कुछ है तो आप लोग भी बोलिएगा यार। पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर बोल रहे हैं कि भाई नियो इंपेरियलिज्म हो रहा है। मतलब जो इंपेरियलिज्म ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा था, उसी की तरह अब कर रहे हैं एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे कंपनी अभी भी वही कर रहा है। And जो इसके एग्जाम्पल देने हो तो ट्विटर का देख लो अभी, जो मिनिस्टर के साथ में वो झगड़ा हुआ था ना, तो वी कैन कोट दैट फेसबुक इंटरफेयरिंग इन लॉट ऑफ कंट्रीज। क्या क्या था नाम वो कंपनी का फेसबुक के अंदर? कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज एनालिटिका। एनालिटिका थी का। हाँ, कैम्ब्रिज एनालिटिका। करेक्ट। ओ, ठीक है, तो वही है। इसका क्रिटिसिज्म यही है कि इट हैज बीन यूज्ड बाय द वेस्ट टू फर्दर जियो पॉलिटिकल एम्बिशंस, रिजाइम चेंज, इलेक्शंस। चलो एनजीओस के बारे में देखते हैं। पुतिन सर, यू वांट टू रीड? I'll just read it out. Okay, so the NGOs, the realists don't give any importance to the NGOs. The liberals, on the other hand, they recognize the positive aspect of the NGO. Even the UN Charter recognizes the role of the NGO as a consultative body under ECOSOC. Okay, like MNCs, even the annual budget, like MNCs जो बड़े बड़े हैं उनका जो annual budget है वो इतना ज़्यादा होता है कि किसी कंपनी के GDP से भी ज़्यादा हो जाए. But the critical view of Marxist scholar towards the NGO is inevitable because liberals have a positive view. Even their role is not new. Along with the East Indian Company, there came Christian missionaries. The role of the missionaries was to build the soft power. NGOs and MNCs work in close nexus with the elitist of that country or the bourgeois class. MNCs channelize their corporate responsibility fund into these NGOs.
like CSR fund. Along with these MNCs, NGOs have been accused of attempting regime change. Recently, Russia has ousted US aid from its country. इंडिया ने भी बहुत सारे NGO इधर उधर फेंके हैं just for this thing. एमनेस्टी इंटरनेशनल, पेटा, आई थिंक एक और एक्ट है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट कुछ, तो फेरा फेमा। सर वो FRCA ही है। हाँ, FCRA, FCRA नो। हाँ FCRA, सॉरी। उसके अंदर मुझे एक चीज याद आ रहा है कि ना, सारे MNC, सारे NGO जो उनको फॉरेन फंडिंग लेना है, दे मस्ट रजिस्टर विथ होम मिनिस्ट्री शायद, एंड दे शुड हैव एन अकाउंट इन SBI ब्रांच ऑफ दिल्ली, तभी तुम फंड ले सकते हो फॉरेन फंडिंग से। Anything else you guys want to add about NGOs? एक और बोल सकते हैं कि ये NGOs इतने बड़े होते हैं कि उनको नोबेल प्राइज भी मिला है अभी, नोबेल पीस प्राइज। रेड क्रॉस है, एमनेस्टी है। इसका क्रिटिसिज्म क्या होगा NGOs का? Interference in internal affairs of states, human rights regime. This became justification of interventionist policies. इंडिया ने जैसे FCRA लाया, तो जो सिविल सोसाइटी का कमेंट था ना अजीत दोवल का, वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। लेजिटिमेसी, लैक ऑफ लेजिटिमेसी बोल सकते हैं। फिर आई थिंक एक डेवलपमेंट के अगेंस्ट भी कुछ होता है ना कि यार NGOs एंड जो MNCs है, they deliberately try to stop the development of developing countries. एनवायरमेंटलिज्म का बोल सकते हैं और ना। ये भी रहेगा कि देयर इज डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, तो वो रिजीम चेंज का उनके ऊपर अक्यूज करते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और उसके अलावा एंटी नेशनल एक्टिविटीज जैसे ग्रीन पीस को बैन किया था एज अ थ्रेट टू GDP में लेकर। ठीक है, आगे चलते हैं। कंटिन्यू पुतिन सर प्लीज, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर देंगे पॉइंट। Yes, sir. So, the role of terrorist organization is in the first world country, which was started by the assassination of the Prince of Austria of the Serbian extremist. यही था reason जो इसकी वजह से World War 1 हुआ था. Since the creation of the Israel and the failure of Arab nations with a direct war, there has been growth in terrorist organizations attempting proxy war. Palestine Liberation Organization was initially a terrorist organization. Initially, Middle East was affected by their asymmetrical actors, but now has become global phenomena. Sponsoring terrorism is a part of foreign policy, जो पाकिस्तान भी करता है। ना सामने से लड़ सकते हैं तो पीछे से ही कर लेते हैं, मतलब ऐसा छिछोरी हरकतें हैं, बट ठीक है। नोम चॉम्स्की कॉल्स USA एज द फर्स्ट टेररिस्ट स्टेट, क्योंकि इन्होंने तालिबान बनाया था। USA को अफगानिस्तान से निकालने के लिए इन्होंने बनाया था। So John Lewis Guides predicted that bigger role of asymmetrical actors in post-Cold War order, as he suggested that USA has killed the python and has given rise to numerous poisonous snakes. How does he describe the current scenario of USA in the post-Cold War order? More challenging because the security threat has become diffused and more difficult to control. इसमें एक चीज लिख सकते हैं ना कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज आजकल दे आर मोर डिजिटल, और जितने स्पीड से पुलिस रिफॉर्म हो रहा है ना, उससे कई ज्यादा फास्टर वे में डिजिटल अडॉप्शन टेररिस्ट कर रहा है। रिक्रूटमेंट वाया सोशल मीडिया पकड़ लो, या फिर ब्रेन वॉशिंग जो सोशल मीडिया से हो रहा है, कुछ ज्यादा ही अलग लेवल पे चल रहा है ये। इट्स वेरी हार्ड टू कंट्रोल। सर यहाँ पे एक स्कॉलर है जॉन लेविस, आगे किसी को पता है क्या नाम है उनका पूरा? मैम स्क्रीन पे लिखा है जॉन लेविस गड्डिस। हाँ, तो उन्होंने भी इसका
कोल्ड वॉर के टाइम पे दिया है कि वी हैव किल्ड द पाइथन बट have given rise to numerous poisonous snakes. At the present, one of the biggest security challenges is nuclear terrorism. Okay, ma'am. Thank you. Anything else anybody wants to add? could very well use the examples from the West Asia, जहाँ पर किसी का टेररिस्ट किसी के लिए फ्रीडम फाइटर है। शायद ये कहीं यूपीएससी का क्वेश्चन है, दिमाग में चिपका था। तो इराक और ईरान के बीच में जो फ्यूड चलता है, सऊदी अरेबिया के बीच में फ्यूड चलता है, मतलब वो हिजबुल्लाह को पैसे देंगे और फिर ये किसी और को पैसे देंगे। तो मतलब जो टेररिस्ट एक्टिविटी है ना, इसको एक तरीके से बिजनेस की तरह भी बना दिया गया है, चैनलाइज कर दिया गया है कि गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कुड एवर डू। और ये इंडिया का स्टैंड है, मेरा नहीं। इंडिया ने यूएन में बोला था कि जो गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की आदत है, इस वजह से ही टेररिस्ट इतना ज़्यादा आगे बढ़ सके कि जो आपके लिए सही कर रहा है, आपकी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से वो सही है, वो टेररिस्ट सही है। इट इज मतलब ये इस पर कोई अनसोलिसिटेड बातें हैं जिसमें लोग कहते हैं कि इंडिया सपोर्ट्स बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इसका ना कोई वेरीफाइड क्लेम है ना कुछ, बट फिर भी अगर आप इंडिया को एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, छोड़ो उसको, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, तो एक तरीके की वर्किंग मशीनरी बन गई है टेररिज्म, जहां पर पीपल पंप इन मनी टू कट अदर पर्सन विथ 1000 ब्लीड्स। ये टेररिज्म का गेम। और ये ट्रांसनेशनल एक्टर्स में सबसे ज्यादा खतरनाक ट्रांसनेशनल एक्टर्स यही होंगे, क्योंकि एमएनसीज का आप फंक्शनिंग देख सकते हैं, इनकी फंक्शनिंग आप नहीं देख पाएंगे। Anything else to add on transnational actors and collective security? चलो एक क्विक रिवीजन कर ले क्या? यस सर। ठीक है, चलो कोई 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 वन बाय वन टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं एंड जस्ट समराइज कर लो कीवर्ड्स देख के। सामने पावर है, स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। अब मुझे ही बताना है क्या? चलो ठीक है, मैं कर लेता हूँ। लेट्स बी फास्ट। पावर है, जैसे थॉमस हॉब्स का कोट है, इन एवरी पर्सन देयर इज एंडलेस डिजायर ऑफ पावर आफ्टर पावर विच ओनली विथ एंड्स विथ हिज डेथ। फिर इसमें रियलिस्ट डिस्कोर्स है, मॉर्गन तो हार्ड पावर पे रिलाई करते हैं। फिर पावर कहाँ पे है? कोल्ड वॉर में बाइपोलर था, एंड ऑफ कोल्ड वॉर यूनिपोलर हो गया, अभी मल्टीपोलर है। डिफ्यूजन ऑफ पावर दिखाते हैं, अलग अलग मॉडल्स है। बिलियर्ड बॉल मॉडल दिया है अर्नोल्ड वॉल्फोर ने। कॉबवेब मॉडल दिया है जॉन बर्टन। 3D चेस मॉडल जोसेफ नाई। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट मॉडल केहोनी एंड नाई। फिर व्हाट इज पावर? पावर के दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, एक है पावर एज कैपेबिलिटी, एक है पावर एज रिलेशनल कंसेप्ट। कैपेबिलिटी वाले में टेंजिबल हो सकता है या फिर इंटेंजिबल हो सकता है। टेंजिबल में मिलिट्री, इकोनॉमिक पावर, जोग्राफिकल है। इंटेंजिबल में लीडरशिप, मोरल, इंटेलिजेंस। फिर टाइप्स ऑफ पावर है, सुपर पावर, ग्रेट पावर, मिडिल पावर, स्मॉल पावर। सुपर पावर हेजिमोनिक होता है, ग्रेट पावर सेल्फ प्रोटेक्शन कर सकता है, मिडिल पावर ठीक है, एंड स्मॉल पावर। फिर रिलेशनल कंसेप्ट में क्या है, दूसरे के कंपैरिजन में कैसा है। इसमें भी दो टाइप है, कंपेलेंस एंड डिटरेंस। स्ट्रक्चरल पावर है, हुसैन स्ट्रेंज का कंसेप्ट था कि पावर डिसाइड्स हाउ थिंग्स शैल बी डन इन इंटरनेशनल एरिना। तो उन्होंने 4 एलिमेंट्स बताए थे स्ट्रक्चर्स के, नॉलेज, फाइनेंस, सिक्योरिटी एंड प्रोडक्शन। तो उन्होंने कहा था कि यूएस स्टिल पजेस कंसिडरेबल स्ट्रक्चरल पावर एज पर हुसैन स्ट्रेंज। ठीक है, याद रखना है, स्ट्रक्चरल पावर हुसैन स्ट्रेंज इंपॉर्टेंट काफी है। चेंजिंग नेचर ऑफ पावर कैसे है, पहले हार्ड पावर पे रिलायंस था, अभी सॉफ्ट पावर हो गया है। तो डिफरेंस क्या है, कॉन्क्रीट है, इनविजिबल है। मिलिट्री इकोनॉमिक ज्यादा है, इसमें कल्चरल आइडियोलॉजिकल है। मटेरियलिस्टिक है, नॉन मटेरियलिस्टिक है। इसमें कम टाइम लगता है, उसमें ज्यादा टाइम लगता है। रिजल्ट भी जल्दी मिलता है, रिजल्ट स्लोली मिलता है। हार्ड पावर इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट या फिर आर्मी, सॉफ्ट पावर इज कंट्रोल्ड बाय सिविल सोसाइटी, एनजीओ वगैरह। कंपेलिंग नेचर है, कंसेंशुअल नेचर है। हवेवर दोनों भी फेल हो सकते हैं।
जोसेफ नाई कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंस के टाइम में बोला है कि हार्ड पावर का यूसेज कम करना पड़ेगा। दैट इज वेयर ही गिव्स द कंसेप्ट ऑफ, पहले तो सॉफ्ट पावर देते हैं, फिर रियलिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं, देन ही रिवाइज इट टू स्मार्ट पावर, कि दोनों भी जरूरी है। एंड एक और है जॉन चिपमैन का फास्ट पावर। रिचर्ड रोसेक्रांस है, ही गिव द आइडिया ऑफ ट्रेडिंग स्टेट्स। फिर रियलिस्ट जो स्कॉलर्स है केनिथ वॉल्स एंड मेयर शाइमर, दे फोकस मोर ऑन हार्ड पावर देन सॉफ्ट पावर। दे से सॉफ्ट पावर इज नॉट कंपेलिंग। मैकियावेली ने भी सिमिलर व्यूज दिए थे कि हार्ड पावर विल बी यूज्ड एट द विल ऑफ द किंग, बट सॉफ्ट पावर कैन बी यूज्ड ओनली एट द विल ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये देखा अपन ने जोसेफ नाई सॉफ्ट पावर, पावर ऑफ अट्रैक्शन होता है, पावर ओवर या फिर पावर विथ होता है। 3 डायमेंशन है, पॉलिटिकल, कल्चरल, फॉरेन पॉलिसी। जोसेफ नाई ने 3D चेस मॉडल दिया है, 3 डायमेंशन बताया। पहला है मिलिट्री, यूनिपोलर है उसमें। 2 डायमेंशनल में इकोनॉमिक है जो मल्टीपोलर है। 3rd डायमेंशन सोशल है, इसमें डिफ्यूज है, कोई ए पोलर है, मतलब कोई पोल नहीं है। ठीक है, फिर हिलरी क्लिंटन ने स्मार्ट पावर दिया है, जोसेफ नाई ने भी स्मार्ट पावर दिया है। ओबामा ने 3 डीज ऑफ फॉरेन पॉलिसी बोला, डिफेंस, डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट। जॉन चिपमन गेव फास्ट पावर, स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। न्यू डार्विनिज्म का कंसेप्ट है, सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट। इसका क्रिटिसिज्म है कि वेल कंसिडर्ड पेशेंट ऑप्शंस आर बेटर देन इल कंसिडर्ड हैस्टी ऑप्शंस। शशि थरूर ने भी बोला है कि इंडिया हैज वन ऑफ द सबसे ज्यादा सॉफ्ट पावर है अभी, एंड इन द 21st सेंचुरी दैट कंट्री हु हैज बेटर स्टोरी टू टेल विल विन, मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस है। फिर शार्प पावर देखा अपन ने, इट इज लाइक डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग बाय प्रोपेगेंडा, मैनिपुलेशन करते हैं मतलब दूसरे स्टेट्स का, काउंटरिंग अदर सॉफ्ट पावर। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर देख लो, रियलिस्ट कंसेप्ट फॉर पीस है, फंडामेंटल लॉ है, एंग्स्ट्रॉम है। डेविड ह्यूम ने बोला है बैलेंस ऑफ पावर इज अ कॉमन सेंस, यूनिवर्सल लॉ है। केनिथ वॉल्ट बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर इज ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्ट्रक्चर ऑफ एनार्की। मार्गेंटो के प्रिंसिपल्स थे, रियलिस्ट एजम्पशन के ऊपर बेसिस है इसका, एनार्की, सेल्फ हेल्प। फिर स्टेट सेंट्रिक मॉडल है, वेस्टफैलियन है। पर्पस क्या होता है, टू प्रोटेक्ट सॉवरेंटी एंड प्रोटेक्ट इंटरनेशनल पीस। टेक्निक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर कौन से हैं? आर्म्स रेस, वॉर, अलायंस, काउंटर अलायंसेस, पार्टीशनिंग ऑफ टेरिटरी, बफर जोन बनाओ, डिसआर्मामेंट करो एंड रिपेरेशंस का फोर्स करो। 2 टाइप होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कि कैपेसिटी बिल्डिंग, एक्सटर्नल मतलब कि कोएलिशन या फिर अलायंसेस। हिस्टोरिकल देखा जाए तो एजेपी टेलर ने 1848 टू 1914 को गोल्डन पीरियड ऑफ बैलेंस ऑफ पावर बोला है। फिर बैलेंस ऑफ पावर के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लिस्का, इट इज मिसप्लेस्ड डिजायर टू सी प्रिसिशन इन एम्बिगुअस कंसेप्ट, तो इसीलिए इसको मर्की कंसेप्ट बोलते हैं। मॉर्गेंटी ने खुद इसके 4 मीनिंग बताए हैं, अर्नेस्ट हास ने 8 मीनिंग दिए इसके। बैलेंस ऑफ पावर के लिए आइडियल कंडीशन क्या होते हैं? रीजनल कंटेक्स्ट होना चाहिए, 4 से 5 एक्टर्स होने चाहिए, एंड मल्टीपोलरिटी होनी चाहिए। एंड मतलब देयर शुड बी नो ग्लोबल पुलिसमैन, देयर शुड नो इंटरनेशनल एक्टर। पाल्मर एंड पर्किंस ने शिफ्टिंग अलायंसेस एंड काउंटरवेलिंग प्रेशर्स बोला है। तो एज पर पाल्मर एंड पर्किन, द बैलेंस ऑफ पावर assumes that through shifting alliances and countervailing pressures, no one power or combination of powers will be allowed to grow so strong as to threaten the security of the rest. इसका क्रिटिसिज्म क्या है? लिबरल्स वुड्रो विल्सन करेंगे, क्योंकि उनको तो इट विल लीड टू नर्वस स्टेट ऑफ पीस बोलते हैं, नॉट अ सस्टेनेबल पीस। रियलिस्ट है स्टेफन वॉल्ड्स, बुक है थियरी ऑफ अलायंसेस। उन्होंने बोला है कि नेशन डू नॉट गो फॉर बैलेंस ऑफ पावर, अदर गो फॉर बैलेंस ऑफ थ्रेट। पावर ट्रांजिशन थ्योरी है केनिथ ऑर्गेन्स्की। ही हैज ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ पावर इंस्टेड ऑफ व्हेन हेजेमन एग्जिस्ट, मतलब वो सपोर्ट करेगा हेजेमनी को। तो वही हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी भी दिया हुआ है किसी ने, किसने दिया है वो? हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी किसका है? हेलो, रॉबर्ट गिल्पिन एंड चार्ल्स किंडल बर्गर या बर्जर, जो भी।
ओके, तो हम लोग देख रहे थे क्रिटिसिज्म बैलेंस ऑफ पावर। लिबरल्स में देखा अपन, नेहरू का देखा, रियलिस्ट का देखा। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट देखा अपन ने कि अलेक्जेंडर वार्ड बोलते हैं एनर्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। डिटरेंस थियरिस्ट है जैसे बर्नार्ड ब्रॉडी, वो बोलते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर लीड्स टू बैलेंस ऑफ टेरर। ट्रांसनेशनल एक्टर्स को बैलेंस कर नहीं सकते हैं, साइबर एरा में कैसे करोगे बैलेंस ऑफ पावर? तो रिलेवेंस क्या है बैलेंस ऑफ पावर का? मॉर्गन थू ने बोला है कि स्टेट्स आर लाइक मैन आर एनिमल्स डोमिनेंटली, सिक्योरिटी डिलेमा होता है। तो क्वेश्चन मार्क क्यों है बैलेंस ऑफ पावर के रिलेवेंस पे? आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 सस्टेनेबल पीस नहीं था। E.H. कार ने 20 ईयर्स ऑफ क्राइसिस में बोला है कि इवन कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रूव टू बी यूटोपियन कंसेप्ट। पंडित नेहरू बोलते हैं नर्वस स्टेट ऑफ पीस है। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में आइडियल कंडीशन कम हो गए, वर्ल्ड बिकेम इंटरनेशनल, बाइपोलरिटी आ गया, 2 सुपर पावर्स रह गए। आफ्टर कोल्ड वॉर यूनिपोलरिटी है, यूएसए है यूनिपोलर। तो बैलेंस ऑफ पावर करने की वजह लोग सॉफ्ट बैलेंसिंग कर रहे हैं या फिर बैंड वैगनिंग कर रहे हैं। तो अभी करंटली कंसेप्ट एक हो रहा है कि असिमेट्रिक बैलेंस भी आया है। तो राइज ऑफ असिमेट्रिक एक्टर्स लेड टू असिमेट्रिकल बैलेंसिंग। अच्छा, कई स्कॉलर्स है जैसे हेडली बुल है, वो तो बोलते हैं ग्लोबल सिविल सोसाइटी एमर्ज हुआ है, एनार्किकल सोसाइटी आ गया है, तो फिर बैलेंस ऑफ पावर करने की जरूरत क्या है? न्यू रियलिस्ट कॉल फॉर बैलेंस ऑफ टेरर, न्यूक्लियर वेपन्स है तो डिटरेंस चालू करो। ये सब बैलेंस ऑफ पावर करने की जरूरत क्या है? सिक्योरिटी कम्युनिटी का कंसेप्ट दिया है कार्ल ड्यूश ने। ठीक है, तो टू कंक्लूड वी कैन से concepts like complex interdependence and collective security have emerged as alternatives. बिलियर्ड बॉल मॉडल से अभी हम जॉन बर्टन के कॉबवेब मॉडल तक आ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पावर का रिलेवेंस कम हो रहा है। डेटरेंस देखते हैं। डेटरेंस में सुन त्सू का बोल सकते हैं, आर्ट ऑफ वॉर में बोला है टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग इज द सुप्रीम एक्सेलेंस। थॉमस शेलिंग ने डिफाइन दिया है टू परसुएड एनिमी in his own interest to avoid some course of action. इंट्रोडक्शन में रियलिस्ट अप्रोच टू पीस से है, तो डेटरेंस इज अ रियलिस्ट अप्रोच। इसका लिटरल मीनिंग होता है डी टेररे, मीनिंग टू फ्राइटन। ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है बेस्ड ऑन द गेम थियरी ऑफ थॉमस शेलिंग। इसमें एजम्पशन क्या होते हैं? दैट एक्टर इज अ रैशनल एक्टर, ही कैन कम्युनिकेट एंड क्रेडिबिलिटी है डिटरेंस का। न्यूक्लियर ट्रायड होना चाहिए, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होना चाहिए, तभी ये रिलेवेंट रहेगा डिटरेंस का कंसेप्ट। हाउएवर डिटरेंस की कंसेप्ट लेड टू आर्म्स रेस। इसमें बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स हैं, डायरेक्ट डिटरेंस है, एक्सटेंडेड डिटरेंस, मैसिव रिटेलिएशन, फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स, असिमेट्रिक एस्केलेशन, नट्स यानी न्यूक्लियर यूटिलाइजेशन, टारगेट सिलेक्शन। रिलेवेंस इन क्वेश्चन क्यों है? कोल्ड वॉर खत्म हो गया, अब कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस आ गया, असिमेट्रिक एक्टर आ गया है। हेनरी किसिंगर ने बोला है डिटरेंस डज नॉट वर्क फॉर सुसाइड बॉम्बर्स, इररेशनल एक्टर्स आए। फिर रेलेवेंस क्यों है डिटरेंस का? वी कैन सी फ्रॉम द एक्शंस ऑफ ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, यूएसए इज नॉट अटैकिंग इट बिकॉज दे हैव न्यूक्लियर वेपन्स। यूक्रेन का हालत देख सकते हैं, अभी उनके पास न्यूक्लियर नहीं है तो डिटरेंस बचा नहीं है, रशिया इज अटैकिंग डायरेक्टली। यूएसए के न्यूक्लियर पोस्टर रिव्यू में इसका मेंशन है, रशिया के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में इसका मेंशन है। तो मतलब कंट्रीज आर स्टिल टेकिंग दिस डिटरेंस एज सीरियसली। हाउएवर जैसे भी टैक्टिकल वेपन्स आए हैं तो डाउटफुल है अभी इसका भी कंपेरेटिव एडवांटेज है या फिर भी रिलेवेंस है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एज मेथड फॉर डिटरेंस में केनिथ वॉल्ड्स रियलिस्ट है, ही कॉल्स न्यूक्लियर वेपन्स एज वेपन्स फॉर पीस, इट रिड्यूसेस चांसेस ऑफ वॉर। मीरशाइमर कॉल्स फॉर सिलेक्टिव प्रोलिफरेशन। स्कॉट डी सगन ने मैडमैन थियरी दिया है। नीना टननवॉल्ड सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, नॉर्म्स टैबूज हैव प्रिवेंटेड न्यूक्लियर वेपन्स एंड स्टिग्मा है, पब्लिक ओपिनियन है उसके अगेंस्ट। पोलैरिटी ऑफ पावर थीसिस, केनिथ ऑर्गेन्सी का एक कुछ आइडियाज है उसके बारे में। तो पोलैरिटी क्या होता है? सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, मल्टीपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर। इसमें 2-3 कीवर्ड्स है, बस याद रख लो। किंडलबर्गर ट्रैप मतलब लैक ऑफ ट्रस्ट, जोसेफ नाई का कंसेप्ट है ये। ओवर स्ट्रेचिंग मतलब कि फ्री लोडर्स हो जाते हैं हेजिमन के साथ में, एग्जाम्पल चाइना बोल दो। मेगोलोमेनिया मतलब कि जो हेजिमन है वो खुद का डिल्यूजन हो जाता है एंड ही हिमसेल्फ विल ब्रेक द रूल्स।
बाइपोलैरिटी में स्ट्रक्चरल रियलिस्ट बोलते हैं कि मेरशाइमर एंड केनिथ वॉल्ट्ज, बाइपोलैरिटी इज द बेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ वर्ल्ड पीस। फिर से वही मॉडल आ गए, जॉन बर्टन का कॉबेब मॉडल, जोसेफ नाई 3D चेस मॉडल, केहोनन नाई कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, कापलान सिस्टम थियरी बोल रहा है कि भाई बाइपोलैरिटी इज द मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट अनस्टेबल। तो स्ट्रक्चरल रियलिस्ट वाले के इसमें क्रिटिसिज्म कापलान का डाल दो, कापलान वाले में क्रिटिसिज्म इनका डाल दो। कलेक्टिव सिक्योरिटी देखते हैं, लिबरल अप्रोच टू एस्टैब्लिश पीस है, वुडरो विल्सन का आइडिया है। सिमिलरली रियलिस्ट भी देते हैं, बैलेंस ऑफ पावर के बेसिस पे होगा सेल्फ हेल्प। कलेक्टिव सिक्योरिटी इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। स्टेट सेंट्रिक व्यू है, सिक्योरिटी डिलेमा के बेसिस पे है। कलेक्टिव सिक्योरिटी के बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ बैलेंस ऑफ पावर है। कलेक्टिव सिक्योरिटी इज एश्योर्ड स्टेट ऑफ पीस as compared to balance of power which was nervous state of peace according to Woodrow Wilson and Nehru। ठीक है, फिर यूएन पीस कीपिंग है, डैग हैमरस्कोल्ड बोलते हैं यूएन वाज नॉट क्रिएटेड टू क्रिएट हेवन ऑन अर्थ बट टू प्रिवेंट फ्रॉम द स्कॉर्ज ऑफ वॉर। ये इन्हीं का स्टेटमेंट है ना, प्लीज कंफर्म कर लो कोई तो। इज दैट करेक्ट जो मैंने बोला? चलो ठीक है, बाद में देख के बोल देना यार। फिर इसमें भी डिबेट्स है, यूएसए एंड डेवलप्ड कंट्रीज जो ट्रूप्स नहीं भेजते, फंड्स भेजते हैं, दे आर कॉलिंग फॉर रोबस्ट पीस कीपिंग एंड मल्टीनेशनल पीस कीपिंग। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं वैसे यार, छोड़ दो, स्कॉलरली ओपिनियन भी नहीं है। हाँ, मनमोहन बहादुर है वाइस एयर चीफ मार्शल, उन्होंने बोला है कि वाइल इंडियन कंट्रीब्यूशन टू पीस कीपिंग हेल्प्स इट अर्न गुडविल एट यूएन सर्कल्स बट इट डज नॉट हैव मच इम्पैक्ट ऑन यूएन पावर प्ले। सी राजावन बोलते हैं कि चाइना हैज बिगन टू स्टील द पॉलिटिकल मार्च ओवर इंडिया। इट हैज यूज्ड पीस कीपिंग टू बोल्स्टर डिफेंस डिप्लोमेसी विद अफ्रीकन नेशंस। तो मतलब वही सम स्कॉलर्स आर कॉलिंग फॉर कि ने स्ट्रेटेजिकली यूज करो इसको। सी राजामोहन calls कि India needs to step up cooperation with major powers and regional partners like African Union, as well as go beyond troop contribution to provide training, logistics, operational support and conflict mediation, expand domestic defense capabilities। ठीक है, सिक्योरिटी का देखते हैं, कोट है एडवर्ड स्ट्रेटेशियस का, हैप्पीनेस हैज मेनी रूट्स बट नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन सिक्योरिटी। बैरी बुधान का है, सिक्योरिटी पॉलिसी हैज टू डील विद सीरीज ऑफ मोरल डिलेमास टू विच देयर कैन बी नो इजी सॉल्यूशंस। फिर हॉब्स ने बोला सिक्योरिटी इज द फाउंडेशनल वैल्यू। डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नोन एज सिक्योरिटी स्टडीज एंड आई थिंक लिबरल्स कॉल इट एज पीस स्टडीज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इवॉल्विंग कंसेप्ट है, आर्किटेक्टोनिक है ये। अलग अलग थियरीज है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अलग देखते हैं, रिफ्लेक्टिविस्ट अलग देखते हैं। 3 पैराडिम्स है इसमें, नेशनल, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। तो इसमें भी डिबेट है, देखेंगे अपन। बैरी बुझान ने रिसेंट कंसेप्ट दिया है मल्टी डायमेंशनल सिक्योरिटी का, फिर ह्यूमन सिक्योरिटी का। उसके पहले इंस्ट्रूमेंटल देखते हैं, रियलिस्ट हार्ड फेस होते हैं, इनको चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस बोलते हैं। लिबरल्स आर सॉफ्ट फेस, चिल्ड्रन ऑफ लाइट। तो रियलिस्ट फोकस ऑन मिलिट्री मीन एंड लिबरल्स फोकस ऑन मेनी डिफरेंट मीन्स। फिर सिक्योरिटी स्टडी करने के 3 टाइप देख लो, सिक्योरिटी ऑफ होम, सिक्योरिटी अगेंस्ट होम एंड सिक्योरिटी बाय व्हाट मीन्स। तो इन तीनों में स्टडी करेंगे तो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। रियलिस्ट वांट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अगेंस्ट अदर स्टेट्स, लिबरल्स आल्सो वांट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बट आल्सो ह्यूमन सिक्योरिटी भी चाहिए उनको। मार्क्सिस्ट का फोकस है इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड ह्यूमन सिक्योरिटी पे, क्योंकि वो स्टेटलेस ही बोलते हैं ना। सिक्योरिटी डिलेमा का कंसेप्ट है जॉन हर्ज ने दिया है। जॉन हर्ज, विशियस साइकिल ऑफ इनसिक्योरिटी बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। लेटर ऑन हर्बर्ट बटरफील्ड कहते हैं वॉर्स हैपन बिकॉज ऑफ एंजाइटी टू प्रिवेंट वॉर्स। रॉबर्ट जार्विस ने डेवलपमेंटल मैट्रिक्स दिया है। बूथ व्हीलर ने बोला है सर्च फॉर सिक्योरिटी प्रीमॉर्डियल इंस्टिंक्ट। रियलिस्ट बोलते हैं कि जीरो सम गेम है सिक्योरिटी। इसके अगेंस्ट में इनसिक्योरिटी डिलेमा बोला है पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स लाइक अमिताभ आचार्य एंड मोहम्मद आयूब।
इनसिक्योरिटी मतलब कि इंटरनल सिक्योरिटी डिलेमा, मतलब ठीक है बाहर की कंट्रीज तो आएंगे कुछ करेंगे, बट उसके पहले इंटरनली प्रॉब्लम्स हमारे में, नेशन बिल्डिंग है, सिविल वॉर्स हो रहे हैं, डिफरेंसेस है बीच में। और जॉर्ज सोरेनसन भी है इसी में, इनसिक्योरिटी डायलेमा। ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, आगे है नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, वही स्टेट सेंट्रिक व्यू पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं इसमें। रिफ्लेक्टिविस्ट थियरीज है, जो मतलब रिफ्लेक्टिविस्ट वाले बोलते हैं कि मीन्स आल्सो मैटर, मतलब एंड्स मैटर नहीं करते हैं। जैसे मैकेवली होता है, बोलता है ना कि नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मीन्स आप कुछ भी यूज कर लो। रिफ्लेक्टिविस्ट बोलते हैं कि भाई मीन्स भी इंपॉर्टेंट है, फोकस करो ह्यूमन सिक्योरिटी पे भी। फिर फेमिनिस्ट बोलेंगे कि यार वुमेन एंड चिल्ड्रन आर द वर्स्ट सफरर्स ऑफ वॉर, तो सिक्योरिटी के नाम पे तुम कुछ भी कर रहे हो। पीपल सेंट्रिक एंड नॉट स्टेट सेंट्रिक होना चाहिए। तो वही न्यू पर्सपेक्टिव ऐड करा है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इकोनॉमिक डिप्रिवेशन, इन्फेक्शियस डिसीजेस, टेररिस्ट वगैरह, ये सब भी सिक्योरिटी के अंदर आना चाहिए। जैसे इमैनुअल कांत बोलते हैं कि नो मैन शुड बी ट्रीटेड एज एन मीन्स टू एन एंड, एवरी मैन हैज इनएलिनेबल ह्यूमन राइट्स विच शुड नॉट बी वायलेटेड। तो वही मतलब ह्यूमन सिक्योरिटी, सोसाइटी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, सब कुछ इंटरलिंक्ड होना चाहिए। इसी के चलते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ये आया था ह्यूमन राइट्स रिजेम में, यूएन में। फेमिनिस्ट स्कॉलर्स है सिंथिया एनलॉय ने बोला जेंडर्ड कंसेप्ट, फ्रीडम फ्रॉम फियर होना चाहिए। वॉर एंड पीस दोनों में एक्सप्लॉयटेशन होता है वुमन का, रेप होता है, सेक्स लेवरी होती है। एंड जे टिकनर जिन्होंने रिफॉर्मुलेट करा है मार्गेंटस के 6 प्रिंसिपल्स, शी सेज कि रियलिस्ट हैव इग्नोर्ड ह्यूमन सिक्योरिटी। रेप्स होते हैं वॉर में इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज सिस्टमिक मिलिट्री स्ट्रेटेजी होती है। रियलिस्ट कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी जेंडर बायस, पैट्रियार्कल है, नैरो है। लेकिन गुड न्यूज यह है कि यूएन रेजोल्यूशन 132 ने इंपॉर्टेंस रिकॉग्नाइज करा है। फॉरेन फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी आई है। आई थिंक इवन हिलरी क्लिंटन ऑल्सो कॉल्ड फॉर फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंस इन फॉरेन पॉलिसी। यस सर, पोस्ट उसको मॉडर्निस्ट हिलरी लाइक, डॉक्ट्रिन कहते हैं। करेक्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट लाइक रिचर्ड एशले हैव क्रिटिसाइज्ड रियलिस्ट फॉर एनार्की के डेफिनेशन, क्योंकि वो बोलते हैं ना अलेक्जेंडर वेट कि एनार्की इज व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट, तो व्हाट स्टेट्स थिंक करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर इनसिक्योर डिलेमा देते हैं अमिताभ आचार्य, मोहम्मद आयूब, जैसे मैम ने बताया, सोरेनसन भी आते हैं इसमें। सोरेनसन ने शायद ग्लोबलाइजेशन में भी कंट्रीब्यूट करा है ना, कि ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट अफेक्टेड ऑल द स्टेट्स इक्वली, इट हैज डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्ट करा है। जो पुअर स्टेट्स है उनके ऊपर ज्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ा है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का व्यू पॉइंट देखे अपन ने, नॉर्म्स टैबूज वाला वही है। पॉलिटिक्स ऑफ रीअश्योरेंस करना है, कम्युनिकेशन करना है, आइडिया, मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो सब अपने सोशल कंस्ट्रक्ट है, मतलब वॉट एवर आवर थिंकिंग कल्चर है उसी के बेसिस पे होता है। इमेंसिपेटरी स्कूल ऑफ थॉट है एंड्रयू लिंकलेटर, वो बोलते हैं कि देयर इज अ नीड फॉर न्यू मोरल बाउंड्रीज एंड एम्पावरमेंट ऑफ पीपल एट ग्रास रूट्स। बैरी बुधान जो है कोपेनहेगन स्कूल के, उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी की बात की है, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी की बात करी है, क्रिएटिंग सिक्योरिटी डिस्कोर्सेस। 5 डिफरेंट सिक्योरिटी के डायमेंशन बताए हैं, मिलिट्री, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल। तो इसको कैसे याद करेंगे, मीप्स, MEEPS। ठीक है, इंटीग्रेटेड व्यू लिया है ह्यूमन, नेशनल, ग्लोबल। आगे है नेशनल इंटरेस्ट, मॉर्गेंथ्यू सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, देयर इज वन गाइडिंग स्टार्ट, वन स्टैंडर्ड फॉर थॉट, वन रूल ऑफ एक्शन, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। मॉर्गेंथ्यू रियलिस्ट है, ही प्लेस्ड नेशनल इंटरेस्ट और आइडियोलॉजी और इथिक्स जस्ट लाइक मैकियावेली। वो इनको हार्ड पावर के टर्म्स में देखते हैं नेशनल इंटरेस्ट को। एंड लॉर्ड पाल्मरस्टोन है, वो कहते हैं नो परमानेंट एलाइज, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, द ओनली परमानेंट थिंग इज नेशनल इंटरेस्ट। चार्ल्स बियर्ड है, ही सेज कि नेशनल इंटरेस्ट इज डायनेमिक, क्योंकि स्टेट्स आर मिसयूजिंग इट टू जस्टिफाई द एक्शंस ऑफ हूएवर इज इन पावर। मॉर्गेंथ्यू ने क्लासिफाई करा है वाइटल इंटरेस्ट या नॉन वाइटल इंटरेस्ट, या फिर कोर इंटरेस्ट एंड वेरिएबल इंटरेस्ट। वाइटल क्या है, सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सर्वाइवल ऑफ स्टेट। नॉन वाइटल क्या है, इकोनॉमिक, फ्रेंडली रिलेशंस वगैरह, बाकी एनवायरमेंटल, बाकी सब लगा लो इसमें।
सब्जेक्टिव होते हैं, नो फिक्स्ड ऑर्डर है इसका। फिर कैसे, मतलब हाउ टू अचीव नेशनल इंटरेस्ट पे अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट है। रियलिस्ट लाइक मीर शामिल बोलते हैं हार्ड पावर यूज करो, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ पावर करो, ऑफेंसिव स्टांस ले लो, ऑफेंसिव रियलिज्म बनो। न्यू लिबरल्स बोलते हैं कि भाई सॉफ्ट पावर का यूज करो। जोसेफ नाय बोलेंगे स्मार्ट पावर का यूज करो। फिर अपन ने इंडियन देखा था, 6 फोल्ड पॉलिसी थी जो अर्थशास्त्र में दिया है। क्या क्या है उसमें? स्टेट्स शुड फॉलो 1 संधि या ट्रीटी ऑफ पीस, विग्रह वॉर, 3 आसन न्यूट्रलिटी, याम मार्चिंग, समस्या अलायंस, द्विभी भाव, मेकिंग पीस विथ वन एंड एंड वॉर विथ अनदर। तो आई रिपीट, संधि, विग्रह, आसन, यान, समस्या, द्विधि भाव एंड 4 फोल्ड पॉलिसी। आई थिंक अभी सर ने बताया था ना, वो क्या था? साम दाम दंड भेद। ठीक है। फिर चार्ल्स बियर्ड है द आइडिया ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। मोहम्मद यूनुस ने थियरी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट दिया है, उसमें पाकिस्तान का एग्जांपल दिया है कि जो भी आर्मी कहती है वो नेशनल इंटरेस्ट बनता है। रेमंड एरन ने सूडो थियरी दिया है, इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, तो इसलिए सूडो थियरी बोलते हैं इसको। जोसेफ फ्रैंकेल है कि सर्च फॉर डेफिनेशन इज यूजलेस, मतलब कोशिश भी नहीं करना है इसको डिफाइन करने का, इट्स अ मर्की कंसेप्ट, इट्स एम्बिगुअस कंसेप्ट। जैसे लिस्का ने बोला था ना नेशनल सिक्योरिटी के लिए। रॉबिन्सन ने 6 टाइप्स दिए इसके नेशनल इंटरेस्ट के। प्राइमरी मिलिट्री, सेकेंडरी इकोनॉमिक होता है, परमानेंट हो, टेम्पररी हो सकता है, जनरल या फिर स्पेसिफिक। तो आई रिपीट, प्राइमरी, सेकेंडरी, परमानेंट, टेम्पररी, जनरल, स्पेसिफिक। ली क्वान यू है, इन्होंने बोला है न्यू नेशनल इंटरेस्ट की जरूरत है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट शुड नॉट बी मिक्स्ड अप विद नेशनलिज्म एंड इमोशंस। इसका क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है? नेशनल इंटरेस्ट एंड ग्लोबल इंटरेस्ट हैव बिकम इंटरमिक्स्ड, इंटरट्वाइंड। Low politics of economy and social welfare has gained more priority than high politics of security and survival, ये बोला है नाई एंड केहोने ने। ठीक है। लेकिन इसमें एग्जांपल ऐसा होता है कि जैसे यूक्रेन में हुआ, तो इवन इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड था वो नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से था। वी डिड नॉट कंडेम एनीबडी बिकॉज इट वॉज इन आवर नेशनल इंटरेस्ट। ट्रांसनेशनल एक्टर का देखते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एक्टर होते हैं, स्टेट एक्टर्स, इंटरनेशनल एक्टर्स या नॉन स्टेट एक्टर्स। इसमें अलग अलग व्यू पॉइंट है, रियलिस्ट के, लिबरल्स के, मार्क्सिस्ट के, तो इसी के इसमें स्टडी करेंगे हम। फिर एमएनसी है, एनजीओ है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो एमएनसी को मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि भाई वैनगार्ड्स ऑफ लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर है ये। एमएनसी ऑफ द वेस्ट आर वेरी पावरफुल एंड एक्सप्लॉइटेटिव। रियलिस्ट बोलेंगे कि एजेंट्स ऑफ स्टेट्स है। रॉबर्ट कॉक्स कहते हैं इंटरनेशनलाइजेशन स्टेट्स हुआ है बिकॉज ऑफ एमएनसीज। लिबरल्स एडवोकेट एमएनसीज एंड सपोर्ट देम। मार्क्सिस्ट जैसे इमैनुअल वॉलरस्टीन है, वर्ल्ड कैपिटलिज्म हो रहा है उसकी वजह से, तो वही मतलब न्यू इंपेरियलिज्म बोलते हैं ना, पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर, सिमिलर आइडिया है। क्रिटिकल थियरिस्ट है जिन्होंने कंज्यूमर कल्चर बोला है। आई थिंक इसमें वो 1 डायमेंशनल मैन की बात हुई थी, हर्बर्ट मर्क्यूसी वाली। फेमिनिस्ट स्कॉलर का बात कर सकते हैं, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमन हो रहा है एमएनसी की वजह से। फिर न्यू एनवायरमेंटलिस्ट जो है ना, इको फेमिनिज्म वाले, जैसे वंदना शिवा है, दे हैव लिंक्ड एमएनसीज विथ एनवायरमेंटल एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, वही है यार, मतलब इसका क्रिटिसिज्म है कि इंटरफेरेंस हो रहा है इलेक्शन में, बहुत ज्यादा पैसा है इनके पास, रिजाइन चेंज करवा रहे हैं। एनजीओ के भी सिमिलर पॉइंट्स हैं, कोई स्कॉलरली ओपिनियन तो है नहीं वैसे। एंड अजीत दोवल का याद रख लो कि उन्होंने बोला है कि जो सिविल सोसाइटी है, इट इज बीइंग मिसयूज्ड बाय द इंटरनेशनल एक्टर्स एंड इट हैज नाउ बिकम लाइक 4th-generation वॉरफेयर, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। बाकी तो डन है। किसी को ऐड करना है?
Does anybody wants to add anything? Hello. अरे कुछ तो बोलो गाइस. हो गया. यस सर, मेरी तरफ से हो गया. आप लोग बताओ कुछ हो तो आपके पास ऐड करने के लिए. सर ये सब तो आपने बता ही दिया. पीसी, सत्यम, पुट्टू पुट्टू, क्रिएचर, स्टॉइक, उमेश, कुछ ऐड करना है सर आपने सब या फिर तो मैं बता रिकॉर्डिंग दिया है. हाँ सर, सब कुछ हो गया. Okay, all right. Thank you very much, everyone. And thank you for all your valuable inputs and participation. And for those who are watching on YouTube, please, if you like the content, then please like, share, and subscribe to our channel. Thank you, guys.